Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the truth, that is the truth and non-violence. ये अपन ने पढ़ा था. उसके पहले अपन ने स्वदेशी पढ़ा था. स्वदेशी यानी क्या? We are supposed to use only Indian goods. What Britishers used to do? They used to raw material लेके जाते थे, सच एज कॉटन चीप रेट में इंग्लैंड जाता था और वो फिनिश गुड्स बन के आता था और ये गुड्स क्या है इंडियन मार्केट में बेचे जाते थे. तो व्हाट गांधी जी टोल्ड इसके बाद, जब तक अपन इनको इनकी ताकत नहीं कट करेंगे, इनकी ताकत कमज़ोर नहीं करेंगे, तब तक अपना कुछ भी नहीं हो सकता. तो फिर स्वदेशी यानी क्या? मतलब कम सिर्फ इंडियन गुड्स अपना हो. लाइक यहाँ पे इंडियन विल वेयर only Indian made goods like those made from khadi and all. Huge bonfires were made on the street and British goods were burned in view of British officers. Then ahimsa and truth. Truth means real existence. Ahimsa means non-violence. To achieve truth, that is real existence, means should be non-violent. It refers to threefold form of ahimsa. Non-violence of thought, that is good intention. Non-violence of speech, that is not to abuse and hurt. Non-violence of deed, that is avoiding injury. Ahimsa is one of the important principle of religious text. Then Gandhiji proved that ahimsa is the only solution way to bring our successful revolution. The change brought about by such a revolution based on ahimsa possesses a degree of permanence when compared with the change brought about by bloody revolution of Russia and France. Then truth and non-violence. Gandhi wanted to change the individual and thought him to change the society. Individual should imbibe new values for this purpose, right? वो लोग अपनी ज़रूरती चीज़ें पूरी करना चाहिए, राइट? और गांधी जी बोलते हैं नॉन वायलेंस इज़ द मीन फॉर दिस. नॉन वायलेंस मीन्स सेल्फलेस for love for all. All life should be organized accordingly. Senses should be controlled. Life should be considered as one. The 11 vows preached by Gandhi were for this purpose. फिर धर्मा के बारे में बोला. Truth is the basic of everything. It is the highest dharma. It is the law of our being. Truth means satya. Satya is derived from sat, that is existence. Everything that exists is contained in truth. Knowledge flows from truth and knowledge leads to bliss. Knowledge and bliss are thus contained in truth. God is considered as a Sat Chit Ananda. Then truth, matter of experience. It is what the voice within tells us. Speaking truth is not sufficient. One should be truth in word, thought and deed. Truth is based on morality. Then we started with the point trust. Trust and non-violence constitute the kernels of Gandhiji's philosophy. He said that trust stands for reality, but truth, according to Gandhi, we do not mean the character of preposition which is either true or false. Gandhi sometimes described truth as existence, consciousness and bliss. At first, Gandhi used to say God is truth, but later on he converted truth is God. Therefore, according to Gandhi, truth is God and satyagraha is a graha of, and thus it means holding fast to truth. Gandhi explained the term satyagraha from various viewpoints. Satyagraha is not a weapon of the coward, the unarmed and the helpless. It is a weapon of morality, valiant and the active. Satyagraha is not the traditional resistance of evil by evil. It is the resistance of evil by its opposite, that is by goods. Then moving towards the next paragraph, Satyagraha is essentially based on love. सत्याग्रह क्या है? It is based on love. In fact, according to Gandhi, Satyagraha appears to be as a religious pursuit. See, Satyagraha appears to be a religious pursuit. It rests on a religious belief that there is one God behind everything and as such a game, God resides in every one of us. See, सत्याग्रह क्या है? Is essentially based on love. In fact, according to Gandhi ji, ये क्या है? सत्याग्रह appears to be a religious pursuit. It rests on religious belief
that there is one God behind everything. See, एक ही भगवान है जो सब करता है, and as such the same God resides in every one of us. और वही भगवान सब में इसमें रहता है. Gandhi also feels that a belief in rebirth is almost a precondition of सत्याग्रह. See, गांधी जी को भी फील होता है that belief in rebirth is almost a precondition of सत्याग्रह. सत्याग्रह demands selfless and sincere pursuit of truth without having any consideration of any advantage or gain. See, गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी believes in rebirth is almost a precondition of सत्याग्रह. See, गांधी जी यहाँ पे rebirth में बिलीव करते थे and it is one of the almost a precondition of सत्याग्रह. सत्याग्रह demands selfless and sincere pursuit of truth without having any consideration of any advantage or gain. See, सत्याग्रह demands selfless. सत्याग्रह क्या डिमांड कर रहा है? It should be selfless and it is a sincere pursuit of truth without having any considerable of any advantage or gain. But one will be able to walk on such a sharp razor edge only if someone believes that he will get the fruit of good work. See, but यहाँ पे क्या बोल रहा है? One will be able to walk. ऐसे शार्प रेजर पे आप कब चल पाओगे? अगर आप बिलीव करोगे कि जो आपको फ्रूट मिलेगा वो सिर्फ आपके गुड वर्क का रहेगा, सिर्फ आपके अच्छे काम का फल आपको अच्छा मिलेगा, तब भी आप ये कठिन राह पे चल पाओगे. इफ नॉट इन दिस लाइफ, इन सब्सिक्वेंट लाइफ. इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो आप पक्का ऐसे कर पाओगे. Gandhi says, with the knowledge that the soul survives the body, he is not impatient to see the trump of it in the present body. See, Gandhi says, with the knowledge that his soul, with the knowledge that the soul serves the body, it is not impatient to see the trumps of it in the present body. Gandhi describes satyagraha as a गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या बोला? इट इज़ अ फोर्स अगेंस्ट नॉन वायलेंस, ट्रायनी एंड इनजस्टिस. गांधी जी डिस्क्राइब सत्याग्रह को क्या बोल रहे हैं? ये एक फोर्स है अगेंस्ट नॉन वायलेंस, गलत चीज़ें एंड अगेंस्ट इनजस्टिस. ऑल दिस इविल्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ द ट्रूथ, दैट इज ऑल परवसिव एंड ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग. ऑल दिस एविल्स अराइज. अब ये सारी बुरी चीज़ें क्यों आती हैं? अगर अपन सच्चाई छोड़ दे तो, अगर अपन सच्चाई के राह पे नहीं चलेंगे तो आपके साथ बुरी बुरी चीज़ें होगी. दैट इज़ ऑल परवसिव एंड ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग. ये सारा क्या है? परवसिव है एंड कॉम्प्रिहेंडिंग है. Therefore, Gandhi says that if we start resisting evil with evil, violence with violence, anger with anger, then we are only adding fuel to fire. गांधी जी क्या बोल रहे हैं? अगर अपन बुराई को बुराई से हारेंगे, रेजिस्ट करेंगे, वायलेंस विथ वायलेंस करेंगे, एंगर विथ एंगर के साथ रेजिस्ट करेंगे, तो अपन क्या कर रहे हैं? आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. राइट? अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुरा व्यवहार करोगे. राइट? तो ये क्या है? और सामने वाले को और उचका रहे हो ना, गलत ही काम कर रहे हो ना. वायलेंस के में और आप वायलेंस कर रहे हो. जैसे अगर सामने वाला गुस्सा है तो आप भी और गुस्सा हो जाओगे, तो क्या होगा? गुस्से में और गुस्सा आएगा. एंगर विथ एंगर, देन वी आर एडिंग फ्यूल टू फायर. द मोस्ट इफेक्टिव फोर्स अगेंस्ट दिस इविल कैन बी द वन विच वुड फोर्स देम टू इवेपरेट, एंड दैट कैन बी डन ओनली बाय सत्याग्रह. इसके लिए ये जो बुरी चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट आपको फाइट करना है. तो एक अच्छा तरीका क्या है? ताकि अब जो गलत चीज़ें हैं वो चली जाए, वो इवेपरेट हो जाए, उड़ जाए. तो एक राह है, दैट इज़ बाय सत्याग्रह. दैट इज़ बाय सत्याग्रह. The aim of सत्याग्रह is not to embarrass the wrongdoers. सत्याग्रह का एक एम क्या है? Not to embarrass the wrongdoer. मतलब
गलत दिशा में नहीं जाने का, गलत काम नहीं करने का। Its intention is to bring about what Gandhi calls a change of heart. See, its intention is to bring about what Gandhi calls a change of heart. मतलब आपका दिल बदलना चाहिए। अगर आप सत्याग्रह की राह पे चलोगे तो आपका मन बदलेगा। आपको पता चलेगा कि बाबा अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ बुरा मत करो ना, आप प्यार से रहो। अपने आप वो बुराई उसके मन में कि एक दिन की ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट Satyagraha is based on the presupposition that there are no enemies or opponents, but that there are only wrongdoers. See, in fact, सत्याग्रह किस पे बेस्ड है? सत्याग्रह is based on एक थॉट पे बेस्ड है सत्याग्रह। दैट इज क्या है? इधर कोई भी आपका एनिमी नहीं है, ना ही कोई अपोनेंट है, ना ही कोई आपके साथ गलत करने वाला है। ऐसे समझ के चलो। अच्छा मालूम है वो आपका दुश्मन है, आपके साथ गलत कर रहा है, बट आप उसको दुश्मन की नज़र से देखो ही मत ना, आप उसको दुश्मन बोलो ही मत ना। नहीं, मेरा दोस्त है, हमेशा मेरा भला चाहता है, ऐसे सोचो तो क्या है, हमेशा सही होगा आपके साथ। सत्याग्रह ऑल्सो डिमांड्स एक्सट्रीम पेशेंस ऑन द पार्ट ऑफ द सत्याग्रही। सी, सत्याग्रह में क्या है, आपको बहुत से पेशेंस रखने पड़ेंगे ऑन द पार्ट ऑफ सत्याग्रही। मतलब आपने बोला कि नहीं बाबा ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, ये मुझे कुछ नहीं करेगा, ये मेरे को कुछ नहीं करेगा, ऐसे आप सोचो तो क्या है। अगर आप बोलो कि नहीं, वो आपने ये मूवी देखी है क्या, गुड मॉर्निंग इंडिया, मुन्ना भाई MBBS का पार्ट 2 जैसा है ना वो मूवी, गांधीज़म, गांधीगिरी के ऊपर। वो कैसे है, वो एक जन बोलता है कि वो रोज़ पान खा के मेरे घर के बाहर थूकता है। तो वो गांधी, उसने क्या बोला, संजय दत्त ने उसको क्या बोला, ठीक है रोज़ थूकता है ना, वो थूक के गया कि तू हंस के पहुँच दिया कर। रोज़ वो पहुँचता था, एक दिन उसको शर्म आई, राइट, और उसने सॉरी बोला, और वो उसके बाद कभी उसने थूक नहीं, और वो अच्छा दोस्त बन गया। देखा ना अपन ने वो मूवी में। तो क्या है, इट इज़ डिमांडिंग अ पेशेंस, एक्सट्रीम पेशेंस रखो। A wrong doer cannot see his wrong at once. He will take time to win over the anger and hatred. See, टाइम लगता है ना। हाँ, अभी उसको बहुत नफ़रत हो गई थी उस इंसान से। वो मूवी का एग्जाम्पल वो कंटिन्यू करूँ तो अभी उसको बहुत नफ़रत हो गई थी उस इंसान से कि रोज़ मेरे घर के सामने आके थूकता है। वो बहुत गुस्सा हो गया था कि मैं जाके उसको पीटता हूँ, करता हूँ करके बोला था उसने, राइट। लेकिन संजय दत्त ने उसको क्या बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं करेगा, तो शांति से धैर्य से काम ले, क्षमता से काम ले, और देखो एक दिन वो चेंज हो गया ना। The सत्याग्रही must wait patiently for the good sense of the wrongdoer to be aroused. ये जो सत्याग्रही क्या है, he must wait patiently for the good senses of the wrongdoer to be aroused. गांधी discussed सत्याग्रह from passive resistance. See, गांधी जी ने क्या किया, डिस्कस सत्याग्रह फ्रॉम passive resistance. Gandhiji distinguished satyagraha from passive resistance. Firstly, satyagraha is not a passive state. In fact, it is more active than violence. In fact, क्या है? It is more active than violence. Secondly, in passive resistance, there is an element of force. It does not completely forbid the use of non-violence. See, first इसमें क्या बोला है? सत्याग्रह क्या है? Is not a passive state. सत्याग्रह ये पैसिव स्टेट नहीं है, ये क्या है, इट इज़ एन एक्टिव देन वायलेंस। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है बट वायलेंस नहीं करता। सेकेंडली, इन पैसिव रेजिस्टेंस क्या है, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ फोर्स। सेकेंडली, इन पैसिव रेजिस्टेंस क्या है, एक एलिमेंट ऑफ फोर्स है। इट डज नॉट कम्प्लीटली फॉरबिड द यूज़ ऑफ वायलेंस। सी, जो आपको अलाउ नहीं करता यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस इन सत्याग्रह। On the other hand, violence is completely forbidden even in the face of very adverse situation. On the other hand, क्या है, violence is completely forbidden. Violence completely छोड़ देते हैं। अब बहुत ज़्यादा worst situation आया तो भी अपन violence की ओर नहीं बढ़ते हैं, तो भी अपन violence नहीं करते हैं यहाँ पे। Then अहिंसा और नॉन वायलेंस। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अहिंसा, अहिंसा और नॉन वायलेंस। अहिंसा और नॉन वायलेंस,
is the central concept of Gandhi's philosophy. See, अहिंसा और नॉन वायलेंस, ये क्या है? Is the central concept of Gandhi's philosophy. According to Gandhi, अहिंसा और नॉन वायलेंस has a positive meaning also. अहिंसा और नॉन वायलेंस is the central concept of Gandhi's philosophy. According to Gandhi, अहिंसा और नॉन वायलेंस has a positive meaning also. In positive sense, non-violence means love. See, ahimsa or non-violence is the central concept of Gandhi's philosophy. According to Gandhi, ahimsa or non-violence has a positive meaning also. In positive sense, non-violence means love. See, अगर positive sense में देखा जाए तो non-violence means love. It means love towards all living creature. See, अभी non-violence मतलब क्या? प्यार, love. एंड लव टूवर्ड्स ऑल लिविंग क्रिएचर. अभी ये प्यार आपको हर लिविंग क्रिएचर पर डालना है. लाइक बर्ड्स की तरफ भी, लाइक कोई बर्ड्स को मार रहे हैं या कोई शिकार कर रहे हैं, शिकार कर. सी, दैट मीन्स वन शुड नॉट लव ओनली ह्यूमन बीइंग बट एवरी लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड. सी, जो मैंने बोला ना, ये कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस. हाँ, नॉन वायलेंस मीन्स लव एंड लव टुवर्ड्स ऑल लिविंग क्रिएचर. हर लिविंग क्रिएचर को आपको प्यार से देखना है, प्यार करना है. दैट मीन्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, बट हर ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड. जो भी लिविंग बीइंग है इन द वर्ल्ड, उन सबको आपको प्यार से रखना है. व्हेन अ पर्सन क्लेम्स टू बी अ नॉन वायलेंट, ही इज एक्सपेक्टेड नॉट टू बी एंग्री विद वन हु हैज़ इंजर्ड हिम. सी, अभी जब आप नॉन वायलेंस की बात कर रहे हो या बोल रहे हो कि नहीं मैं नॉन वायलेंस की राह पे चलता हूँ, मैं नॉन वायलेंस में बिलीव करता हूँ, जब आप ऐसे कोई बात करता है, जब ऐसा कोई इंसान बात करता है, तो उसका मतलब क्या है? अगर किसी ने आपको हार्म भी किया है, किसी ने आपको मारा भी है, तब भी आप उस पर गुस्सा नहीं होंगे. मतलब उसने आपको बुरी तरह से इंजर्ड किया है, राइट? इफ़ ही हैज़ इंजर्ड यू बैडली, कितना भी पूरा इंजर करो, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, तब भी उस इंसान के प्रति आपके मन में प्यार ही रहना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए. आपको उसके प्रति गुस्सा नहीं आना चाहिए. कहाँ पे थे अपन? He will not wish his harm. He will wish him well. कभी भी देखो, आप उसके बारे में गलत नहीं सोचोगे, आप उसके बारे में अच्छा ही सोचोगे. अरे अपन पेज नंबर 3.8 पे आ गए, गलत पेज पे आ गए. सी, he will not swear at him and he will not cause him any physical hurt. सी, ना ही आप उसको हर्ट करोगे, ना फिजिकली ना कैसे. अब उसने आपको मारा है, राइट? तो आप उसको कुछ भी नहीं करोगे, ना ही उसको हार्म करोगे. ही विल पुट अप विथ ऑल द इंजरी टू विच ही इज सब्जेक्टेड बाय द रॉन्ग डूअर्स. सी, वो अपनी इंजरी ऐसे ही संभालेगा कि बाबा ऐसे समझेगा कि मेरे कुछ तो बुरे कर्म है, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ है, ऐसे बोल के आपको आगे बढ़ना है, छोड़ देना चाहिए ऐसे. थस नॉन वायलेंस इज कंप्लीट इनोसेंस. से नॉन वायलेंस क्या है? ये कंप्लीट इनोसेंस है. कंप्लीट नॉन वायलेंस इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इल विल अगेंस्ट ऑल दैट लिविंग. से कंप्लीट नॉन वायलेंस क्या है? इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑल इल विल. मतलब जो भी गलत काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको उसके साथ गलत नहीं करना है. जो भी, therefore it embraces even subhuman life, not excluding nauseous, inspect or weak. See, therefore क्या है? It embraces even subhuman life, not including nauseous, insect or weak. Non-violence is therefore in its active form goodwill towards all life. See, non-violence is therefore क्या है? It is active form goodwill towards all life. It is pure love. When the idea of non-violence in Gandhiji's philosophy is analyzed, then number of characteristic features stand out. See, जब अपन गांधी जी का ये नॉन वायलेंस आइडिया सुनते हैं, फिलोसॉफी सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसकी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स अपने सामने आते हैं. इन हिज बुक सोशल, गांधी जी की एक बुक में उन्होंने बोला है,
कहाँ पे थे? इन हिज बुक सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ गांधी, जे बंदोपाध्याय stated the following characteristic feature of Gandhism non-violence. See, in his book Social and Political Thought of Gandhi, J. Bandyopadhyay stated the characteristics of Gandhism non-violence. अभी गांधीज्म नॉन वायलेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये अभी अपन देखेंगे. नॉन वायलेंस इज नॉट द सेम एज नॉन किलिंग. सी, अब नॉन वायलेंस क्या है? नॉन किलिंग के जैसे सामान्य ज्ञान नहीं मारने का. हम नॉन वायलेंस और नॉन किलिंग दोनों सेम नहीं है. नॉन वायलेंस इज नॉट नॉन रेजिस्टेंट बॉर्न आउट ऑफ कोवर्डाइस. सी, नॉन वायलेंस क्या है? इज नॉट नॉन रेजिस्टेंस बॉर्न आउट ऑफ कोवर्डाइस. नॉन वायलेंस implies several positive values. से नॉन वैल्यू क्या है? इसके अंदर सर्टन पॉजिटिव वैल्यूज भी है. दिस वैल्यू इंक्लूड्स लव, एक्टिव रेजिस्टेंस टू इनजस्ट, करेज इन द फेस ऑफ वायलेंस, नॉन पोसेशन, ट्रूथफुलनेस एंड ब्रह्मचर्या. सी, नॉन वायलेंस इम्प्लाइज सेवरल पॉजिटिव वैल्यूज. सी, नॉन वायलेंस में क्या है? बहुत से पॉजिटिव वैल्यूज भी है. और पॉजिटिव वैल्यूज कौन से हैं? The positive values include love, active resistance to injustice. Love, first one. And active resistance to injustice मतलब क्या है? पता है यहाँ पे गलत हो रहा है तो आप पार्ट लो. गलत हो रहा है तो उसके अंदर पार्ट लो और वो सही करो. ना आप गलत सहोगे ना किसी को सहन करने दोगे. करेज इन द फेस ऑफ वायलेंस. सी, वायलेंस फेस करने के लिए भी तैयार रहो. नॉन पोजेशन मतलब आप ये नहीं क्लेम करोगे कि ये मेरा है और मेरा ही रहेगा. ऐसा कुछ नहीं रहेगा. हमेशा सच का साथ दो और हमेशा सच्चाई की राह पे चलो. ट्रूथफुलनेस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रह्मचर्या. नॉन वायलेंस इम्प्लाइज ब्रेड लेबर विच गांधीजी derived from Ruskin and Tolstoy and ultimately from the Bible. See, non-violence implies bread labor, which Gandhi derived from Ruskin and Tolstoy and ultimately from the Bible. Gandhi defines it as a driving law that must earn his bread by laboring with his own hand. See, Gandhi defined it as a divine law. गांधी जी क्या करते हैं? इसको एक डिवाइन लॉ बोला है. दैट मैन मस्ट अर्न विथ ब्रेड बाय लेबरिंग हिज ओन हैंड्स. मतलब आप जो भी कमाते हो मेहनत के साथ कमाओ, आपके श्रम के साथ कमाओ. राइट? अभी मेहनत करना यानी क्या? अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करो ताकि आप ईमानदारी से सब कुछ कमा सको. और जितनी आपने मेहनत की है उतना आपको मिल ही जाएगा और आपको उतना मिलना ही चाहिए. नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू देन लाइफ. सी, नॉन वायलेंस क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू देन लाइफ. गांधी रिगार्डेड नॉन वायलेंस टू बी अ अल्टीमेट वैल्यू ऑन 3 grounds. गांधी जी regarded non-violence as an ultimate value on 3 ground. नॉन वायलेंस को उन्होंने इम्पोर्टेंट क्यों दिया है? 3 बेसिस पे उन्होंने नॉन वायलेंस को इम्पोर्टेंट बोला है. फर्स्ट, इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. सी, ये जो कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस क्या है? इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. सेकेंडली, इट एनहांसेस ऑल अदर वैल्यूज विदाउट इट डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एनी. सी, सेकेंडली, इट एनहांसेस अदर वैल्यू ऑल्सो विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एनी. थर्डली, इट इज़ अनलिमिटेड इन द एप्लीकेशन. थर्डली क्या है? ये अनलिमिटेड है. मतलब ऐसा नहीं कि नॉन वायलेंस सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है. जहाँ पे भी गलत हो रहा है वहाँ पे आप नॉन वायलेंस यूज़ कर सकते हो. राइट? इसलिए बोल रहे हैं कि यू कैन यूज इट इन अदर सेंस ऑल्सो. अदर तरीके से भी आप नॉन वायलेंस को यूज़ कर सकते हो. Non-violence is in fact the acceptance of spiritual metaphysics. See, non-violence क्या है? In fact, it is the acceptance of spiritual metaphysics. It is not merely the negative act of refraining from doing offense, injury, and harm to others, but really it represents the ancient law of positive self-sacrifice and constructive suffering. See, it is not merely the negative act of refraining from other offenses. नॉन वायलेंस क्या है? ये सिर्फ एक नेगेटिव एक्ट नहीं है गलत के साथ ऑफेंस करने का या इंजोरी एंड हार्म और टू अदर्स, बट रियली इट रिप्रेजेंट द एंशिएंट लॉ ऑफ पॉजिटिव सेल्फ सैक्रिफाइस एंड कंस्ट्रक्टिव सफरिंग. सी, इट रिप्रेजेंट द
ancient law of positive self-sacrifice and constructive suffering. Gandhiji interpreted it as a signifying utter selflessness and universal love. गांधी जी ने इसको क्या बोला है? इट इज़ नथिंग, ये विदाउट एनी सेल्फिशनेस के साथ काम करता है और इट इज़ अ यूनिवर्सल लव. द अल्टीमेट एम ऑफ नॉन वायलेंस इज इवन टू लव द सुपर एनिमीज और अपोनेंट. सी, द अल्टीमेट एम ऑफ नॉन वायलेंस क्या है कि बाबा आप आपके दुश्मन को, ये जो आपके अपोनेंट है, उनको भी प्यार करो, उनके साथ भी आप प्यार से रहो. मालूम है ना वो आपका दुश्मन है तो भी क्या हुआ, तो भी आप उसके साथ प्यार से रहो. दुश्मनों को भी प्यार से रहने का यहाँ पे एज पर द नॉन वायलेंस. विल wind up our lecture here. In next lecture we'll continue with this point, that is अहिंसा और नॉन वायलेंस. ये पॉइंट अपन कंटिन्यू करेंगे. Meanwhile, if you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.